Hello guys, welcome back again to the Lani coaching classes. So guys, in last C language tutorial we learn about what operators in C language, right? And with the if statement also, if statement, if statement and all. Okay. So today we'll discuss about nested if with syntax, flowchart and with example. Again discuss about EFS ladder with one example with flowchart and syntax. What is syntax, what is the use, execution kya hai, this all about control statement, EFS ladder and nested if. Fine, so let's start with the video. So guys, what is nested if? Nested if means within if means if condition under if condition. Means nested if means what? If under if, right? This is one if, this is another if. This is called nested if. Fine. So what is the syntax? What is the syntax? If condition curly bracket against if condition inner block inner if statement again. This is what? Else. This is what? Inner else. Is if का yes, inner else. Fine. Then inner else statement. This is what? Outer else. Is if का yes part. Okay, outer else. Yes block statement. ये outer. Fine. If you want एंड इसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन आपको देना है आफ्टर ईफ स्टेटमेंट, जो भी आउटर ईफ एल्स स्टेटमेंट होगा, ये अगर स्टेटमेंट आपको चाहिए वो भी दे सकते हैं. फाइन. स्टेटमेंट. फाइन. सो दिस इज व्हाट सिंटैक्स. सो ये एग्जीक्यूशन में ओवरऑल बताती हूँ. सी यहाँ पे क्या होता है, हियर फर्स्ट कंडीशन दिस विल चेक. फर्स्ट कंडीशन, if this condition is true, then only it will check what? Second condition. Fine. Condition 1 and condition 2. Fine. Then condition 2 is true. If the condition 2 is true, then inner if statement will execute and control directly goes to what? Out of if. Fine. Then second chance, if condition what? Condition 1 is false, then control will not go in inner block, control directly go to what? This else statement. Fine. This one condition, this is two condition. Okay. Then if condition 1 is true, then it will goes to condition 2. So if condition 2 is false, then where the control will go? Control will directly goes to this else statement. Fine. You know, if statement is true, then if block will execute, else block will skip, right? So this is what? This is inner if else if, and this is what? Outer if. So अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ऑब्वियसली आउटर else को जाएगा, एंड अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जो सेकंड if कंडीशन है ये चेक होगा, नेस्टेड if, एंड देन ये अलग जो भी पोर्शन है ये एग्जीक्यूट होगा. if is like. Fine. Then we'll see what? Flowchart. Flowchart. Fine. What is flowchart? कैसे होगा? Start. Sorry, I start here. It's actually pages. Start.
then it will check what? First condition, if condition. Okay, if this condition is true and if the condition is false, two conditions, right? अगर ट्रू है तो क्या होगा? इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जो भी इफ कंडीशन के अंडर बॉडी आपने स्टेटमेंट दिया है तो वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, फाइन. एंड अगर फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक होगा, नेस्टेड इफ वाला. ओके, इफ कंडीशन विल चेक. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. अगर ये सेकंड इफ कंडीशन फॉल्स है तो नेस्टेड एल्स ब्लॉक जो भी है, नेस्टेड एल्स ब्लॉक, ओके, नेस्टेड एल्स एग्जीक्यूट होगा. फाइन. एंड अंडरस्टूड. अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ बॉडी, अगर फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन ट्रू चेक होगा. देन इफ दिस कंडीशन भी ट्रू देन नेस्टेड इफ का जो भी स्टेटमेंट हो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पे चला जाएगा. फाइन. अगर ये कंडीशन यहाँ पे, देन डायरेक्टली कंट्रोल विल गो डायरेक्टली टू व्हाट? आउटर जो भी स्टेटमेंट आपने दिए हैं वहाँ पे चला जाएगा. स्टेटमेंट आउटर if else. Fine. So this is what? This is the flow chart. Fine. Flow chart of nested if. Fine. Let's take one example. We have to what? Suppose we have to increase the salary and some conditions are there like जिनका age above 50 है but salary less than 60 है, तो क्या होना चाहिए? सैलरी 10,000 से इंक्रीज होना चाहिए, राइट? एस अगर एज ग्रेटर दैन 50 नहीं है, अगर एज ग्रेटर दैन 50 नहीं है उस केस में 5,000 इंक्रीज होना चाहिए. फाइन. 3,000 से. फाइन. एंड अगर सैलरी कम है 60,000 से तो हमें क्या करना है? 5,000 से सैलरी इंक्रीज करना है. लेट्स सी कैसे प्रोग्राम बनता है. ओके, void main कैसे होगा? यहाँ पे आपको क्या चाहिए? अब यहाँ पे एज कैलकुलेट, एज देन सैलरी आपको चाहिए, सैलरी एज ये वेरिएबल्स चाहिए, राइट? सो इंटीजर एज एंड सैलरी मैंने ली है, सैल ये वेरिएबल है. फाइन. देन हमें यूज़र से इनपुट लेना है. फाइन. सो क्या आएगा? प्रिंटफ स्कैनफ विल बी इन द पिक्चर, राइट? एंटर एज एंड सैलरी. ओके, देन स्कैन करके लेंगे, मतलब स्कैन इन, हम कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो स्कैनफ आएगा, %d सेमीकोलन कॉमा what and age and salary सेमीकोलन. अब यहाँ पे क्या होगा? इफ एज अगर 50 से ग्रेटर है और अगर सैलरी क्या है? सैलरी क्या है? लेस देन 60,000 है तो क्या होना चाहिए? सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 10,000. सर ओके, 10,000 से इंक्रीज होना चाहिए. अदरवाइज इट मीन्स अगर सैलरी ग्रेटर देन 60,000 है और एज ग्रेटर देन 50 है तो क्या होना चाहिए? 5,000 से इंक्रीज होना चाहिए सैलरी. सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000, राइट? और अगर एज कम है
50 से, ओके 50 से कम है तो क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, सैलरी 3000 से इंक्रीज करना है। सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 3000, ओके। एंड ये आउटर वाला स्टेटमेंट प्रिंट एफ एंड ऑफ प्रोग्राम, ओके। सो दिस इज द प्रोग्राम। यहाँ पे अब कैसे होगा, सी यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे, राइट। आउटपुट क्या आएगा, सी एज अगर हमने लिया है 40 एंड सैलरी अगर 50,000 है, ओके 40 है, इट मीन्स 40 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल डायरेक्टली गोज टू व्हाट, दिस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एंड सैलरी 3000 से इंक्रीज होगा। और यहाँ पे हमें सैलरी प्रिंट भी करना है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, प्रिंट एफ हमें सैलरी प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, आउटर लॉग सैलरी इक्वल्स टू परसेंट डी एंड सैलरी, ओके। सो सैलरी प्रिंट होगा, क्या 50,000 सैलरी है प्लस 3000 किया तो 53,000, ये सैलरी इंक्रीज हो गई, ओके। इफ आई टेक इनपुट एज इज 60 and salary is 50,000, so what will happen, see here first condition will check 60 is greater than 50, yes condition is true, it will check this condition. If salary is less than 60, yes condition is true, then this control will goes to here and salary 10,000 से increase होगा, it means क्या आएगा 50 and 10, 50,000 and 10,000 is 60,000, so this will be the answer, fine. So ऐसे ही ये एग्जीक्यूशन होगा नेस्टेड इफ का, फाइन. सो we'll come to the next point. Next control statement is what? Else if ladder. Else if ladder means what? If else if ladder is the statement is an extension to the if else statement. It is used in the scenario where there are multiple cases to be performed for different condition. Okay. So what is the syntax? What is the syntax of if else ladder? If else ladder. Syntax क्या है? If condition 1 control statement 1 इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एल्स इफ देन कंडीशन 2 अगेन एल्स इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फाइन, देन अगेन एल्स इफ. सी यहाँ पे आप एल्स इफ कितना भी ले सकते हो, कंडीशन कितना भी दे सकते हो, अप टू एन, फाइन, इट्स नॉट लिमिटेड. कंडीशन 3 ओके एंड स्टेटमेंट 3, फाइन. ऐसे करके आप एल्स इफ कंडीशन n and statement n, fine. So this is what syntax, okay. Then I'll explain the execution of the syntax with the example of program only, okay. So we'll see flow chart. फ्लो चार्ट कैसे आएगा इसका, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशन चेक होती है, कंडीशन 1, कंडीशन 1, फाइन. देन अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फाइन. एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स then what will happen, condition 2 will check,
ओके, कंडीशन 2 चेक होगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो नेक्स्ट सेकेंड थर्ड वाला इफ एस कंडीशन चेक होगा, राइट। कंडीशन 3 चेक होगा, राइट। और कंडीशन 3 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर फॉल्स है, ऐसे करके एन तक आप कंडीशन चेक करते हो, राइट। ये फ्लो चार्ट ऐसे डाल रहा होगा। फाइन, स्टार्टिंग पॉइंट। फाइन, सो यहाँ पे कंडीशन एन ट्रू है तो स्टेटमेंट एन, एंड फॉल्स है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो भी आफ्टर इफ एल्स लैडर का जो आफ्टर आउट ऑफ ब्लॉक वाला जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा। फाइन, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। फाइन, या सो गाइस, अगर कुछ क्वेरी आपको आती है किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर मैं इस वीडियो के अगर पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप लिंक दे देती हूँ। देन वहाँ पे आप ज्वाइन करके मुझे जो भी है आपका क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो। फाइन, या सो ये हो गया व्हाट इफ एस लैडर का फ्लो चार्ट। फाइन, कैसे ड्रॉ होगा। फाइन, थोड़ा मेरा ऐसे चला गया थोड़ा अगर सिस्टमेटिक चाहिए तो ये इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा। फाइन, मेरी ड्राइंग अच्छी है। फाइन, सो नेक्स्ट सी वन एग्जाम्पल एंड एग्जीक्यूशन, कैसे एग्जीक्यूशन होता है फ्लो चार्ट इफ एस लैडर का। फाइन, सो यहाँ पे क्या प्रोग्राम ले हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क्स एंटर करते हैं स्टूडेंट्स के एंड ग्रेड प्रिंट करते हैं। फाइन ना, सो मार्क्स सी void main integer marks printf enter marks scanf %d and marks। ओके, सो यहाँ पे हमने यूज़र से मार्क्स इंटर करके लिया है और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 देन क्या होना चाहिए, ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए, राइट। प्रिंट एफ ग्रेड ए। फाइन, सॉरी सेमीकोलन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एस इफ क्या है, अगर कंडीशन क्या है यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो बी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट एफ बी ग्रेड, राइट। एस इफ अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा तो क्या होना चाहिए, सी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। ओके, एल्स printf D grade। फाइन, और आउटर ब्लॉक का जो भी स्टेटमेंट होगा printf
end of program. फाइन. सो ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा देखिए. हियर आउटपुट इज व्हाट, एंटर मार्क्स. अगर 60 लिया हमने, ओके, मार्क्स अगर 60 यूजर ने इनपुट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, 60 is greater than 80, condition is false, then it will check here marks is greater than 70, 60 is greater than 70, condition false. Then here it will check marks is greater than 60, greater than 60, here not, here we not used equal to, right? So this condition also false. ये कैसे false होगा, see यहाँ पे कैसे ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे काम करता है. सी, अगर मैं A1 2 इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करती हूँ, ये कंडीशन ट्रू होगा. ओके, इफ आई यूज हियर 2 इज ग्रेटर देन 2, देन दिस कंडीशन विल फॉल्स. फाइन. सो हमने क्या किया है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, 60 इज ग्रेटर देन 60, तो कंडीशन फॉल्स होगा एंड एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और डी ग्रेड प्रिंट होगा. फाइन. और अगर जैसे 70 लिया, 70 यहाँ पे कंडीशन मैच हो रही है, तो बे ग्रेड प्रिंट होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक कंडीशन चेक हो रहा है, हर एक कंडीशन. फाइन. अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ही जो ये बाकी जो कंडीशंस है वो चेक होगी, राइट. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर सपोज मैंने 90 लिया है, 90 इज ग्रेटर देन 80, कंडीशन ट्रू होगी और ए ग्रेड प्रिंट होगा और कंट्रोल डायरेक्टली आउट ऑफ ब्लॉक एंड ऑफ प्रोग्राम चला जाएगा. फाइन. तो ये सारे जो कंडीशंस हैं ये जो स्किप होने वाले हैं. फाइन. फाइन. सो अगर हम डिफरेंस देखा जाए, डिफरेंस बिटवीन नेस्टिंग इफ एंड इफ एल्स लैडर, तो क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट टेक मोर एग्जीक्यूशन टाइम, दे आर स्लोअर एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू इफ एल्स लैडर. वो व्हाई, बिकॉज द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट चेक्स ऑल द इनर कंडीशन स्टेटमेंट once outer condition if statement satisfies, whereas if else ladder will stop condition testing once any of if or else if conditional statement are true. if अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो बाकी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, चेक भी नहीं होगा. ओके. बट नेस्टेड इफ में क्या होता है, अगर कंडीशन पहली वाली ट्रू होती है तो सेकंड कंडीशन वो चेक करता है, तो एग्जीक्यूशन क्या हो गया, स्लो हो गया. दैट इज द डिफरेंस ओनली. फाइन. सो we'll stop here. We'll see the practical in next video, or possibly if possible I'll upload in this video only. Fine. So thank you guys, thank you for watching this video. Bye bye.